Hello everyone. Namaste, Sat Sri Akal. This is Harsha Bantia and I am here to talk about arm balance and the core strength. Okay, so the postures which we will be going through is how to do a crow bakasana, how to do a crane where you will be going little advanced with the crow paws, and how to do an American crow. I'll tell you what is that. And after that, we will also look ahead if we have time left for the headstand pose. How to safely go into that headstand pose and how to do the good variations of your headstand poses. And if time permits, we will also go to the scorpion pose. So I can see that Mani is here. Namaste. Harminder, namaste. So, how many of you here have done crow and attempted headstand with a wall? So, if you are doing it with a wall, the headstand, my first suggestion, stop it. Because if you ever take a support and try to learn something, remember you will always keep practicing but never reach the perfection. Okay? So, how many of you can do easily a crow? Give me a thumbs up over here. And we will stay and see how to do a crow in a more perfect way. And remember, even the hard poses like Mayurasana can be done if you do your practice step by step. So we will focus today more on the stepwise practices. Okay? So let's begin. So when you do a crow pose, Pranam Krishna ji, when you do a crow pose, remember you first need to activate your shoulders and you need to activate your core. Also, you need to know how to do a malasana. So, we usually think कि crow के लिए सिर्फ हाथ चाहिए, ऐसा नहीं है. हमें core strength भी चाहिए, हमें legs की flexibility भी चाहिए. तो मैं पहले crow pose करके दिखा देती हूँ and then we will see how we can go ahead with it. Okay? So if you are a beginner and if you are scared, you can choose a soft surface where even if you fall, you will not get hurt. Okay? So what does crow pose looks like? Okay? Let's see. So first you will sit in the crow pose, or sorry, malasana. So malasana looks like this. Okay? And the crow pose looks like this. Let me first do it and then we will see how to do it. Okay, first the crow pose. Arm balancing, easy. Now the crane pose. So crane pose difference is that your the knees would go towards your armpit. So see the difference, the way I am approaching towards the crane. The crow was over here, the crane is over here. Yes? Could you make out the difference? Now, to do a crow, the first thing what you need to activate is your core section. And in every section I ask, tell me those who are observing this live, this is a quiz for you all. Name it over here, likho yahan par, which are the core muscles. Write it down and after the session, I will scroll down and I will see your answer. I want to see what is the answer of core muscles. Okay? Give me an answer. Till then, let's see what we can do. So for the beginners, you can always start with an arm plank. Arm plank is simple, सब करते हैं, right? लेकिन mistake कहाँ होता है? आप ये पीछे हैं, बहुत बार अगर आप अपना प्लैंक पोजीशन देखोगे, वहाँ कॉमन दो मिस्टेक्स होते हैं. एक आपका हाथ आगे होता है, आपके शोल्डर लेवल से. Can you see where is my wrist? My wrist is ahead of my shoulder. So first correct that.
Bring your hand exactly, or the palm exactly below your shoulder level. Now, second mistake, back, look at my back. My back is arched right now. So at the point when we are arching our back, my plank is not correct. Rather, you tuck your hip in. Can you see? This is my arched back. Tuck your hip in. The moment you tuck your hip in, you're not just engaging your stomach muscles, but you're also engaging your hip muscles. So stay over here. आपने कभी hollow body hold के बारे में सुना है? This is a pose which is practiced by the gymnastic people. Hollow body hold एक ऐसा पोज है जो जिम्नास्टिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है. So यही पोज को हम आपके प्लैंक में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, and also we can utilize this in various other postures. So पहले हम देखते हैं hollow body hold क्या है. So very important, जब आप क्रो कर रहे हैं आपका कोर मसल एंगेज होना चाहिए. क्या आपने जवाब लिखा है कि कोर मसल कौन सा है? प्लीज लिखिए. So hollow body hold is when you lift your legs up, lift your hands up and bring all the pressure to the center of your core and stretch it out. अब यही पोज अगर मैं प्लैंक में लेकर आऊं तो कैसा लिखेगा? ये मेरा नॉर्मल प्लैंक है. अब मैं इसमें hollow body hold इन्वॉल्व करती हूँ. So what I will do? This is my normal plank, right? I will tuck my hip in. I will tuck my hip in. More engage it. Can you see? And I will stay. अगर आप उसको और एडवांस बनाना चाहते हैं तो आप टो के ऊपर से आप टो को रिलैक्स कर दीजिए इस तरीके से. सो आपका पूरा प्रेशर आपके पैरों से हटकर आपके पूरा कोर सेक्शन में आ जाएगा. अगेन, सो यू आर ऑन योर टो, बी ऑन योर toes relaxed. Now tuck. From here, pull it up and tuck. Hold. Hold this for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Drop. ये आप करके देखिए. आपने प्लान किया होगा, बट इट्स सिमिलर लाइक आपने पराठे तो खाए हैं, पर जब आप उसको आलू का पराठा कर दें तो टेस्ट कितना मज़ेदार हो जाता है. सेम वे, एक्चुअली आई एम अ फूडी टू. मुझे खाना बहुत पसंद है. क्या आपको खाना पीना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत खाती हूँ एंड योगा करती हूँ एंड स्ट्रांग रहती हूँ. क्या आप भी खाते पीते हैं? क्या डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं? एनीवेज, लेट्स कम बैक. सो प्लैंक किया आपने, बट प्लैंक को अगर आप और ज़्यादा टफ कर दे तो आप देखेंगे कि आपका कोर मसल्स और ज़्यादा एक्टिवेट होता है. अब हम अपने क्रो पोज में आते हैं. ठीक है, तो क्रो पोज के लिए आपको मल आसन सीखना है. सो सिट इन द मल आसन, जहाँ पर आपका हील्स नीचे रहेगा, लेग्स वाइड रहेंगे. ठीक है, हाथ जुड़े हुए रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ से आप हाथों को नीचे रखें बिना पैरों से हटाए हुए. विदाउट गेटिंग योर हैंड डिटैच, बिना हाथों को हटाए हुए आप हाथों को जॉइन करेंगे. ठीक है, यहाँ से आप हाथों को नीचे रखेंगे बिना हाथ हटाए. हाथों को नीचे रखेंगे. इसके बाद नीचे रखने के बाद आपके हाथ हिलेंगे नहीं. ओके, रादर यू विल कम अप ऑन योर टोज. आप अपने टोज पे आ जाएंगे. ठीक है, अभी भी अगर आप देखें मेरा हाथ और पैर जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं हो रहे हैं. अगर आप हाथों को छोड़ देंगे तो आपका पोस्चर रॉन्ग हो जाएगा. हाथों को जुड़ा रहने दें. फिर सबसे मजेदार पॉइंट और की टू योर क्रो इज ऑलवेज रीच फॉरवर्ड. आपको क्या करना है? रीच फॉरवर्ड. लोग
करते हैं, जंप नहीं करना है. What we have to do is we have to reach forward. Okay, आगे जाना है. The moment you reach forward, reach. Okay, again we'll practice. Reach forward. From here, lift your one toe up. एक पैर उठाइए और हमेशा आगे की ओर देखिए, नीचे नहीं देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे. जब आपको लगे आपका बैलेंस आ चुका है तब दूसरा पैर उठाइए. ठीक है? तो क्या करना है, आपको चिन हमेशा ऊपर की तरफ रखना है. और अगर आप एक बिगिनर हैं तो कोशिश करें, आपका एम होना चाहिए, अगर आप गिर रहे हैं बार बार, इफ यू आर फॉलिंग अगेन एंड अगेन, योर एम शुड बी टू फॉल फॉरवर्ड. आपका एम होना चाहिए कि आप आगे की ओर गिरे, ना कि पीछे की ओर. इसलिए मैंने एडवाइस किया सॉफ्ट सरफेस रखें. जहाँ आप गिरे भी तो आपको चोट ना लगे. क्या मैं गिर के दिखाऊं? नहीं चोट लगता. इतना सा लेवल से गिरने में कोई चोट नहीं लगता. लेकिन आपको ये भय, ये डर हटाना है. यू हैव टू get out of this fear that you're going to fall and hurt yourself. You will not hurt yourself. थोड़ा लगा भी तो क्या, कल तक ठीक हो जाएगा. So आपको join your hands, keep it down, reach forward. अब अगर सपोज करो मैं नहीं हूँ और मुझे डर लग रहा है और मैं पैर उठा नहीं पा रही, मैं फिर भी आगे धक्का दूंगी. ओके, आगे. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मैं गिर पड़ूंगी, नहीं चोट लगता तो गिरो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉल. बच्चे गिर कर ही चलना सीखते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, यू हैव टू फॉल. ठीक है? सो ये हुआ क्रो पोज. अच्छा, अब ये बताओ, क्रो पोज में किसी को कोई डाउट है? देन वी विल मूव लिटिल एडवांस टू द क्रो पोज. ओके, बहुत लोगों ने यहाँ आंसर दिया है कि कोर मसल क्या होता है. शिव ने कहा है कि रेक्टस एब्डोमिनस ऑब्लिक्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. मतलब आपने ये कहना चाहते हो शिव कि ये सिर्फ कोर मसल का मतलब सिर्फ स्टमक के मसल्स है? ऐसा है क्या? सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक्स और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस? नो, रॉन्ग आंसर. दूसरे आंसर्स पढ़ते हैं. मैम, पंजाब में हम सब आलू के पराठे खाते हैं. वेरी गुड, आई लव आलू का पराठा. आई विश टू कम टू पंजाब. मैं आई हैव नेवर बीन टू पंजाब. Okay, so the core muscles is again I will say it's yes, Shiv, आपका आंसर हाफ करेक्ट है. It is rectus abdominis, it is obliques, it is transverse abdominis, but it is also your back muscles. It is also your back muscles and your glutes. अगर आप अपने हिप मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप कहीं पर भी कोई भी आसन परफेक्टली नहीं कर सकते हैं. So you have to work on your glutes, in your stomach, on your back muscles. So all three, it's like a belty region. That's known as your core muscle group. Okay? So now next, we move to the crane pose. Crane pose थोड़ा और सुंदर होता है और थोड़ा सा और एडवांस होता है from your crow poses. Okay? So आरती, क्या आप मेरे साथ ये क्रो पोज कर रहे हो? तो जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो ये सारा पोजेस करेंगे, क्रो पोज, क्रेन पोज, एंड इसका वीडियो यहाँ पोस्ट करेंगे या फिर इस एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के पेज पर पोस्ट करेंगे. राइट ना? क्रेन पोज, क्रेन भी सेम है, बस आपको क्या करना है, हाथ यहाँ रखने के बजाय आपको आर्मपिट पे रखना है. So see now the way I am doing it. Can you see? I am already. Initially I was here. पहले मैं यहाँ थी. अब मेरा आर्मपिट कहाँ है? पैरों के बीच में है. ये मैंने अटैच कर लिया. अब मैंने हाथों को रखा. ऊपर आई मैं. ठीक है? क्रेन मतलब और ऊपर. ओके? Then look forward. Lift one. Then lift two. Look up. Look up. इसमें भी अगर आप आगे गिरते हैं, डरे नहीं. आगे गिरना safe. If you have a soft surface, if you have a yoga mat. Again, crow pose में क्या करना है? आप मल आसन में जैसे पहले बैठ रहे थे वैसे ही बैठेंगे. बस हाथ, आपकी कोहनी जो है
in between the thighs. And you will place your hands down and you will lift your hip up. Lift your hip up. एक पैर उठाइए, दूसरा पैर नहीं उठाना जब तक आप रेडी नहीं है. जब आप रेडी हैं तब आप दूसरा पैर उठाएंगे. ठीक है, ये हुआ आपका क्रेन पोज. सो प्लीज गो अहेड एंड प्रैक्टिस योर क्रो एंड क्रेन. अब आती है बारी साइड क्रो की, या फिर हमारे टीचर कहा करते थे अमेरिकन क्रो. बस ऐसे मजाक में तो हमने बस वही कहना शुरू कर दिया. सो हाउ टू डू अ अमेरिकन क्रो और द साइड क्रो. यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक तरीके से सिखा रही हूँ, बट आप बहुत सारे दूसरे टीचर्स दूसरी तरीके से सिखाएंगे. कोई तरीका गलत नहीं है. नन ऑफ द टेक्निक्स आर रॉन्ग, बट मेरा तरीका थोड़ा सा चीटिंग वाला है. मैं आपको थोड़े इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप वो और इजीली कर पाओ. ठीक है, सो मैं थोड़ी सी चीटिंग टिप्स बताऊंगी जिससे आप चीज़ों को और इजीली कर पाओ. ओके, तो साइड क्रो. देन साइड क्रो मैंने भी बहुत दिन से नहीं किया है, बट आज करते हैं, देखते हैं कैसा होता है साइड क्रो. तो आप अगेन बैठ जाएंगे, लेकिन इस बार मैं मलासन में नहीं बैठी. इस बार मैं क्लोज स्टैंड स्क्वाट में बैठ रही हूँ. यानी कि पैर साथ में करके जब आप बैठेंगे तो उसे कहते हैं क्लोज स्टैंड स्क्वाट. यहाँ से आप फिर से दोनों हाथों को पास में रखें. इस बार बहुत दूर नहीं होगा, इतना पास होगा आपका हाथ. हाथों को पास में रखें. यहाँ से आप वॉक करके मैं बहुत इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ. वॉक करके आप लेफ्ट साइड में आए. ठीक है, अब पैरों को फोल्ड करके ये आप लेफ्ट आर्म्स में रख दो. अब आप एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप बिगनर है तो आप ये वाला जो पोर्शन है वो आप राइट हैंड के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर अ बिगनर. और ये चीज मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो लोग अभी तक ये पोजेस नहीं किए. तो आप ऐसे, ठीक है, टिका दें. फिर जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, पहले ऊपर देखें, फिर देन पैरों को ऊपर दें. एंड देन डाउन. इजी. क्या किया मैंने? 3 स्टेप्स हैं इसके. पहले तो आप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाए. ठीक है, दोनों हाथों को आगे रखें. आगे रखने के बाद आप धीरे धीरे वॉक करके एक साइड चले जाए और अपने थाइज, साइड ऑफ द थाइज को अपने आर्म्स के ऊपर रेस्ट करें और अपने साइड ऑफ द वेस्ट को अपने दूसरे आर्म्स पे रेस्ट करें. क्या पोज है? नहीं, ये बिगनर्स के लिए है. ठीक है, जो अभी तक ये पोज नहीं करते हैं. ठीक है, लेट्स सी. सो आप यहाँ हैं. ठीक है, फिर से वॉक करें. आप एल्बो को, नी को थाइस के ऊपर रखें, दूसरे बॉडी पार्ट को दूसरे हाथ पे रखें और थोड़ा सा नीचे झुके करें. फिर ऊपर देखिए, फिर बैलेंस करके दोनों पैरों को उठाएं. अब इसमें भी गिर गए तो टेंशन मत लेना. इसी लेवल से आप गिर रहे हो तो कोई चोट नहीं लगने वाला है आपको. ठीक है, तो ये 3 पोज जो भी यहाँ पर लाइव हैं आप सबको करना है. इन ऑल एडवांस आसनास and in workout you can increase your core strength by holding the postures or to increase the number of repetition of asanas, specifically when you are doing supine side, prone side postures and strengthening postures. That is such a great answer. Thank you, Sanjeev ji. So Sanjeev ji is doing a really noble task by bringing all the yoga teachers to your platform and asking to spread the knowledge of yoga. Thank you so much, Sanjay ji.
ओके, सो हमने 3 पोजेस सीखे, इजी इजी वाले, क्रो, क्रेन और साइड क्रो, ठीक है। क्या अब हम हेड स्टैंड की तरफ चले? यस, ओके, ठीक है। तो हम इसके बाद आपका वेट, सारे कमेंट्स कहाँ गए? अब हम हेड स्टैंड की ओर जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी प्रैक्टिस नहीं हो रहा, बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी दिस वीडियो इवन आफ्टर व्हेन इट इज अपलोडेड। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स हेड स्टैंड एंड देन स्कॉर्पियन। याद रखो एक चीज, अगर आपने क्रो तक नहीं किया है, अगर आपने सर्वांग आसन नहीं किया है, डोंट गो फॉर हेड स्टैंड। हेड स्टैंड तब तक ना करें, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, बच्चे बहुत इजीली कोई भी चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहला आसन जो सीखा था अपने लाइफ में वो था हेड स्टैंड। मैं तब बहुत छोटी थी, इसलिए आई कुड डू इट, बट इफ़ यू आर एट माई एज और इफ़ यू आर अबव 30, so I would suggest, and if you're not into active lifestyle, then I would suggest go step by step. It is very safe. आप इंजर्ड नहीं होंगे, लेकिन आप डायरेक्टली अचानक से हेड स्टैंड करना चाहोगे, आप ज़रूर इंजर्ड होंगे। तो सबसे पहले अब अपने छोटे छोटे प्रैक्टिसेस को शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग मैम, योर योगा प्रैक्टिस इज वेरी ऑसम, थैंक यू मोना, इजी टू कैच ऑन माई, यस थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो अब हेड स्टैंड करेंगे। हेड स्टैंड के लिए द प्रिपरेशन पोज इज डॉल्फिन। अब डॉल्फिन किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या मैं एक बार हेड स्टैंड दिखा दूं, उसके बाद प्रिपेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे, राइट, लेट्स डू इट। एक बार मैं हेड स्टैंड आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। ओके, सो दिस वाज हेड स्टैंड। अब हेड स्टैंड के लिए प्रिपरेटरी पोज है डॉल्फिन, जो लोग हेड स्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कोर को और शोल्डर्स को एक्टिवेट करना है। तो क्या करना है आपने, पहले आपने एल्बो को पकड़ना है, होल्ड योर एल्बो, प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, ओके, ओपन योर हैंड्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, अगेन क्लैस्प योर ऑपोजिट एल्बो, दिस इज द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को छोड़े नहीं, आप हाथों को ओपन करें, हाथों को इंटरलॉक करें, फ्रॉम हियर अब अपना पैर को पूरा पीछे नहीं लेके जाएंगे, जहां पर आपका टोज है आप वहीं पर खड़े हो जाएंगे, राइट, इट विल फॉर्म अ माउंटेन पोज। नाउ फ्रॉम हियर यू विल गो फॉरवर्ड, टच योर चिन टू द फ्लोर एंड देन कम अप। मैं आगे से अगर दिखाऊं तो ये रहा, आपको प्लैंक पोजीशन पे नहीं जाना है, ऊपर आइए, फिर नीचे जाके टच एंड अप, टच एंड अप, टच एंड अप। सो आपको अपना चिन जो है वो शोल्डर से आगे लेके जाना है। ये तो हुआ पहला आपका ड्रिल, एंड दिस इज द बेस्ट ड्रिल, डॉल्फिन। अगर आपको हेड स्टैंड करना है, कम से कम 30 टाइम्स आप डॉल्फिन रोज प्रैक्टिस करें।
Now for the headstand, the simple steps are, बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस मैंने चूज किया है. इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द हेड स्टैंड, बिकॉज अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो आपको हेड स्टैंड में पकड़ नहीं मिलेगा. सॉफ्ट होना चाहिए सरफेस, लेकिन थोड़ा 10 mm का मैट उतना बहुत ज़्यादा है. उससे ज़्यादा और करेंगे तो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब आप एल्बो पकड़ेंगे, अपना ऑपोजिट एल्बो. ये आपका मेजरमेंट है, इसे आप नहीं छोड़ेंगे. ये आपका मेजरमेंट है, नंबर 1. नंबर 2, इसे आप जमीन पे रखेंगे. ठीक है. अभी भी आपने एल्बो को नहीं छोड़ा है, ये आपका फिक्स्ड पोजीशन है. यहां से आपका एल्बो नहीं मूव होगा. यहां से आप हाथ खोलेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे. जो आपने हाथ इंटरलॉक किया है वो आपके लिए एक वॉल के समान है. ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ. आपने हाथ ऐसे इंटरलॉक करना है जैसे कि एक नारियल उसके अंदर फिट हो जाए. ठीक है. और आपका थंब जो है वो ओपन रहेगा इस प्रकार. ठीक है, नारियल के जैसा. तो ये आपका जो हैंड है ये आपके लिए एक वॉल की तरह काम करेगा. तो पहला पॉइंट था कि आप, ये आपका मेजरमेंट है, इसे आप नहीं हिलाएंगे, इसे आप जमीन पे रखेंगे. फिर दूसरा, आप हाथों को खोल के इंटरलॉक करेंगे, इसे फर्मली स्ट्रॉन्गली आप जमीन पे रखें. थंब ऊपर रहेगा. क्राउन ऑफ द हेड यानी कि सर का ऊपर का हिस्सा आप जमीन पे रखेंगे और हाथों को सपोर्ट देंगे. अपने पूरा फेस को ड्रिल कर लीजिए, हेड को ड्रिल करें. थंब को जोर से प्रेस करें. अब पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं. ये है 4th स्टेप. अब आप वॉक करेंगे, तब तक वॉक करेंगे जब तक आपको एक पुश बैक ना मिले. ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वॉक करना है जब तक आपको पुश बैक ना मिले. वंस यू गेट द पुश बैक, टक योर नी टू द चेस्ट. जो कोई हेड स्टैंड नहीं कर सकते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया देती हूँ. आप पूरा हेड स्टैंड करने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें. पूरा हेड स्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को आप मास्टर करेंगे, हर एक स्टेप को आप जीतेंगे. कैसे पता चलेगा कि हर एक स्टेप आपके लिए इजी हो, मतलब मास्टर कर चुके हैं? जब आप उस पोज में कम से कम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड कर सके. तो मैंने पहला स्टेप क्या दिखाया आपको कि आप टोज के ऊपर खड़े हो रहे हैं और वॉक करके अपने छाती की ओर आ रहे हैं. सेकेंड स्टेप मैंने दिखाया कि आपने थाइस को छाती से टच कर लिया, उसे कहते हैं हम टक. क्या कहते हैं? टक. टक यानी कि आपने कोर को पूरी तरीके से एंगेज कर लिया. ठीक है. उसके बाद क्या करना है देखो. Once you have mastered this step, the other step would be now from here take your leg in the 90 degree and hold. यहाँ होल्ड करने के बाद जब आप कंफर्टेबल फील करें, नीज को पूरा सीलिंग तक लेके जाए. यहाँ पर भी आप पैरों को खोलेंगे नहीं. ठीक है. होल्ड करके रखेंगे. When you feel you are comfortable, then you open your leg. ठीक है. अब फिर से पैरों को बैक वापस फोल्ड करेंगे, वापस छाती की ओर लेके आएंगे कंट्रोल के साथ और नीचे आएंगे. और कभी भी डायरेक्ट नहीं उठेंगे. पहले हम चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चाइल्ड पोज में रेस्ट करें क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो सर पे चला गया है. अब उसको वापस आपको नीचे सेफली लाना है. ठीक है. So anyone is having any doubt about the headstand? Always focus on the roll and not the fall.
ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट ड्रिल, जब आप हेड स्टैंड करते हैं, हेड स्टैंड में मोस्टली लोगों को क्या डर लगता है पता है? अगर वो गिर गए तो, गिर के बैक में चोट लगा तो क्या होगा? आपको अगर गिरना आया तो कुछ नहीं होगा। सो आपको ये सीखना है कि गिरे कैसे, हेड स्टैंड में सेफली हम गिरे कैसे। उसके लिए आपको क्या नोटिस करना है और क्या प्रैक्टिस करना है, वो है रोलिंग। क्योंकि जब आप हेड स्टैंड से गिरेंगे, अगर आप रोल करना जानते हैं तो आप बहुत इजीली हेड स्टैंड से आप रोल कर सकते हैं। किस प्रकार, मैं दिखाती हूँ। बहुत इजी है, बच्चों का खेल है, बच्चे इसे करते हैं, तो हम भी करेंगे। तो इस तरीके से हेड को नीचे रखेंगे एंड रोल। ठीक है, फिर से बैठेंगे, हेड को नीचे रखेंगे एंड रोल। सो हेड स्टैंड आप करें, उससे पहले आप गिरना सीख जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। और आपको अगर डर नहीं लगेगा तो आप बिना वॉल के आप हेड स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप बिना वॉल के हेड स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव करिए, हर दिन प्रैक्टिस करने से विद इन अ मंथ यू विल मास्टर योर हेड स्टैंड, आई गारंटी। बट हेड स्टैंड को पोज बाय पोज करें। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन? हेड स्टैंड आप अगर कर सके तो पहले स्टार्ट करें 30 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, गो अहेड टिल 10 मिनट्स। 10 मिनट इज वेरी सेफ। लेकिन अगर आप एडवांस प्रैक्टिस करते हैं तो आप 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। एक बात याद रखिए, आसना इज नॉट जस्ट अबाउट मास्टरिंग योर बॉडी, but it is also the mastering the pain, the fear which comes with the asana. क्योंकि अगर आप हेड स्टैंड पहली बार करेंगे तो आपको सर पे बहुत प्रेशर आएगा, शोल्डर्स पे, नेक पे बहुत प्रेशर आएगा। अगर आप 5 मिनट तक करते हैं तो बॉडी बहुत पेन में रहेगी, लेकिन तब आपका मैजिक शुरू होगा। देन ओनली द मैजिक विल बिगिन, एंड द मैजिक विल बी that you will go beyond the body pain, that will go beyond the emotions. और सबसे ज़्यादा लाइफ में परेशान क्या करता है? इमोशंस ही तो है ना। जो हमें किसी चीज़ की लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, वही चीज़ परेशान करती है ना। सो अगर हम अपने इमोशंस पे जीत पा ले, हमें किसी चीज़ की लत नहीं लगेगी, हमें किसी इमोशंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हमें कोई चीज़ हर्ट नहीं करेगी। बट उसके लिए आपको आसन को, हठ योगा कहता है, आपको आसन को उस लेवल पे लेके जाना है, होल्डिंग द आसना बियॉन्ड where you can feel the physical pain. Okay, so now we will बाकी के sections हम next class में करेंगे. That is the scorpion. We will do the scorpion in the next class. We will do the mayur asana in next class. We will do the headstands variations in the next class. ठीक है, तो अगर आप और ज़्यादा अगर देखना चाहते हैं, यू कैन गो टू माई चैनल हर्षा फिट मॉम इन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑब्जर्व द स्टेप्स। अभी के लिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो पूछे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक योगा आचार्य हूँ, मैं एक मैराथन रनर और ट्रेनर भी हूँ, मैं साउंड थेरेपिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, और मैं एक 2 साल के छोटे, 2.5 साल के एक छोटे नटखट बेटे की मम्मी भी हूँ। So I am a new mother and I love being a mom. It has given me a lot of power. So जितनी भी लड़कियाँ यहाँ देख रही हैं, अगर आपको लगता है कि माँ होने के बाद आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, नॉट एट ऑल। माँ होने के बाद स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। मैंने इस साल इनफैक्ट फुल मैराथन भी किया है, 42 किलोमीटर रन भी किया है, और मैं आसनास को भी एडवांस लेवल पे लेके गई हूँ। हेड स्टैंड मिनिमम मैं 10 मिनट तक होल्ड करती हूँ। सो I feel I have gone more stronger physical level, mental level पे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Yesterday I was trying and I was not able to lift my body above and weight was coming on my neck. So how shall I start with this? So विजय, आप सबसे पहले तो आप ड्रिल्स को करें। विजय, क्या पहली बात एक जवाब दे, क्या आप आराम से क्रो पोज को होल्ड कर सकते हैं? क्या आप 30 डॉल्फिन नॉन स्टॉप आराम से कर सकते हैं? क्योंकि आपको अगर हेड स्टैंड करना है तो सबसे पहले आपको शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कोर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। जब हम एक बच्चों को बोलते हैं
कि एक सेंटेंस लिखें और एक पैराग्राफ लिखें, हम पहले हमेशा उनको ABCD सिखाते हैं। तो मेरा फिलॉसफी हमेशा ये है कि शुरुआत से शुरू करें ताकि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े और एक ही प्रैक्टिस को आपको साल भर ना करना पड़े। तो अब अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और संजय जी हैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में, जो कि बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके कोशिशों में, आपके प्रैक्टिस में। आप ज़रूर उन्हें कांटेक्ट करें। प्राणिक हीलिंग सिखा दो मैम। प्राणिक हीलिंग इज़ अ स्कूल ऑफ MCK मास्टर चौकोसरी, जिसमें आप स्कूल में जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। इंडिविजुअली सिखाना इज़ नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो। आप स्कूल में जाके सीखें, आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और कोई सवाल है तो आप पूछ लें। एनी टिप्स फॉर हैंड स्टैंड मैम? ओके, हैंड स्टैंड के लिए सबसे अच्छा टिप है कि आप अपने फोर आर्म बैलेंस को इम्प्रूव करें। अगर आपको हैंड स्टैंड करना है तो आप मुझे ये जवाब बताएं, किसने ये पूछा था वैसे? एनी टिप्स फॉर हैंड स्टैंड? हाँ, योगा बाय। सो दलजीत, अगर आपको हैंड स्टैंड करना है तो क्या आप ये बताएं पहले मुझे कि आपका जो फोर आर्म बैलेंस है, पिंचासन या फिर स्कॉर्पियन पोज, क्या आपका वो स्ट्रॉन्ग है? अगर आप इस आर्म बैलेंस पे आप मिनिमम 1 मिनट तक अगर कोई भी पोज होल्ड कर सकते हैं, तब आप जाके अगर हैंड स्टैंड को प्रैक्टिस करें तो इजी होगा। और हैंड स्टैंड के लिए आप वॉल सपोर्टेड बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग टूवर्ड्स द वॉल एंड होल्डिंग दैट पोज फॉर टाइम। देन आप एल स्टैंड पे आप जंप कर सकते हैं। सो दीज आर द टिप्स फॉर हैंड स्टैंड। ओके, others nice workout, thank you. What about neck safety? विजय, नेक सेफ्टी आपने, मैंने कहा ना कि आप पहले अपने ड्रिल्स पूरे करें, आप अपने मोबिलिटीज़ को करें। नेक को कुछ नहीं होगा हेड स्टैंड में अगर आप अपने ड्रिल्स प्रॉपरली करेंगे तो। हेड स्टैंड पोजीशन, व्हाट अबाउट मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन? ये मैंने बता दिया है। आई कैन नॉट डू हेड स्टैंड। प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। Nice class, good work. Okay. Handstand technique I want to know in right easy way. मोना, हैंडस्टैंड के लिए सबसे पहले मैं हमेशा फोर आर्म से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका फोर आर्म बैलेंस अच्छा है तो आप जंप टेक्निक से आप हैंडस्टैंड करें, नंबर 1। नंबर 2, आप वॉल की तरफ आप फेस करें एंड बैकवर्ड वॉक का आप कोशिश करें। जितना आप बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे और बॉडी को जितना स्ट्रेट होल्ड करेंगे, आपको उतना होगा। बहुत सारे ड्रिल्स है आप, लेकिन सबसे पहले आप अगर हैंड स्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हॉलो बॉडी होल्ड का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और फोर आर्म बैलेंस। तो मोना, क्या आप फोर आर्म बैलेंस कर सकते हैं? पहले येस और नो में जवाब दें तो मैं आपको आराम से बता सकती हूँ क्या हैंड स्टैंड कैसे कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको तब तक ए फॉर एप्पल नहीं सिखाऊंगी जब तक आप मुझे पता ना चले कि आप क्या ए जानते हैं, कि ए क्या अल्फाबेट क्या होता है, तब मैं आपको एप्पल सिखाऊंगी, नॉट बिफोर दैट। अभी नहीं हो रहा है practice. Okay, so I think I'll end the session over here. My kid is waiting for me. I am practicing forearm balancing. That is awesome, but can't hold more than 10 seconds for now. Okay, so that's what. तो आप अपने फोर आर्म को जितना हो सके मैम हैंड स्टैंड पर स्पेशल क्लास टिप्स दीजिए। हैंड स्टैंड पे ओके फाइन, ठीक है। तो मैं हैंड स्टैंड नेक्स्ट क्लास, अभी मुझे टाइम की शॉर्टेज हो रही है, मुझे जाना है, मेरा बेबी वेट कर रहा है। बट हैंड स्टैंड के लिए एक बात आप पे ध्यान दीजिए, एक होता है आपका, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका स्टेबिलिटी, शोल्डर स्टेबिलिटी, जिस पे आप फोकस करें बाय होल्डिंग योर सेल्फ इन द वॉल हैंड स्टैंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है बाय द जंप टेक्निक, जिसमें आप स्लोली जितना हो सके हैंड स्टैंड पे आने का कोशिश करिए। थर्ड ड्रिल फॉर द हैंड स्टैंड आई विल शो यू इज वेयर यू कैन कम, ये इस टेक्निक पे आइए, आप हाथ यहाँ रखिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जितना आपका प्रेशर है आप हाथ पे लेके जाइए
और लेफ्ट लेग टो से लेफ्ट हाथ को टच करिए, फिर राइट हाथ से राइट टो को टच करें, फिर लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, ठीक है, ये आप करें। और फिर धीरे धीरे आप जितना हो सके आगे जाए, जंप करें और धीरे धीरे पूरा जो प्रेशर है आप टोज के ऊपर लेकर आए। तो ये आपकी ड्रिल्स है। दूसरा, आप जितना हो सके वॉल के ऊपर जाके वॉल को फेस करके इस तरीके से खड़े होके आपको जितना स्ट्रेट आप बॉडी कर सके वॉल की तरफ आपको बढ़ के जाना है। चिन इन एंड फेस टाइट एंड ट्राई फॉर वेस्ट एरिया। इज देयर एनी क्रॉप ब्रेक और रोप? आर्म बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने की टिप्स। ओके, आर्म बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने की टिप्स है प्लांच। प्लांच एक बहुत अच्छा तरीका है। प्लांच मतलब होता है जहाँ पर आप क्रो पोज ही कर रहे हैं बट वहाँ पर आप नी को थोड़ा भी आप सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्लांच पोजीशन। सो आप हाथ को जब आप प्लांच पोजीशन पे है तो आप यहाँ पर है, जितना हो सके आगे 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 जाते जाइए। कैन यू सी माई हैंड पोजीशन? तो यहाँ पर आप आर्म्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जितना आप प्लांच के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप आपका आर्म बैलेंस और ज़्यादा हो जाएगा। फिर प्लैंक में ही आप वन आर्म प्लैंक करने की कोशिश करिए, यानी कि ये अगर आप प्लैंक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरे हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। इस पे आप एक एक मिनट पे होल्ड करेंगे। जितना आप बेसिक्स पे काम करेंगे आपका फाइनल पोज हमेशा स्ट्रांग होगा। थाई फैट, फैट का बता दे। थाइस फैट, स्क्वाट करें और रनिंग करें, बहुत अच्छा है। रनिंग से आपका, स्विमिंग से आपका थाइस फैट बहुत कम हो जाएगा। जंप टेक्निक्स प्रॉपर करें। यस, जंप टेक्निक के लिए आपको सॉफ्ट जंप का प्रैक्टिस करना है और उसके लिए इतना टाइम शॉर्ट है। मैं एक पूरा सेशन अगर आप हैंड स्टैंड को दे तो वो बेटर होगा। तो हैंड स्टैंड के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं एक काम करूँगी, मैं एक वीडियो बनाऊँगी और अपलोड कर दूँगी हैंड स्टैंड के ऊपर ताकि आप उसे देख सकें, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, thank you all for your time. I hope you learned the basics of crow, the basics of side crow and the basics of headstand. Now next we will do the scorpion in the next class and maybe the headstand also. So thank you everyone. Thank you so much. Bye everyone. We'll end the session over here. Thank you Sarveji for giving me this opportunity. Thank you.